नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अवंती नागराल। मैं अपनी दादी के साथ सेक्स के बारे में वीडियोस जानती हूँ। ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है, बट लेट मी एक्सप्लेन। आई ग्रू अप half my life between the US and India, and still I did not have the sex talk in school. मुझे जब सेक्स के बारे में पता चला, I was about 8 years old. मैं अपने दोस्त के घर गई थी. This is when I was in the US visiting in a summer. और उनकी बड़ी बहन थी. And ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. She said we told her कि we wanted to learn more about puberty because 8 साल में we were so curious about periods and boobs and ये वो. और उन्होंने कहा था कि actually I learned something even cooler than puberty in class the other day. And she attempts to draw a diagram on this whiteboard and she explains the basics of sex to us. So हमने कहा ओके, तो वो साथ में रात को बिस्तरे में लेटते हैं? She's like, yeah, चड्डी के साथ ना? She's like, no, चड्डी के बिना. I'm like, oh, we were freaked out when we were 8 years old. उसके बाद जो भी मुझे information मिला, इंटरनेट के थ्रू मिला या दोस्तों के थ्रू मिला, which was not the best thing. And when I turned 12 years old, मेरी माँ आई थी एक दिन और उन्होंने कहा, आपको पता है किसके बारे में, इसके बारे में पता है? I was like, हाँ पता है, ठीक है. And she gave me a book which my doctor in the US had given me. वहाँ पर pediatrician, वो उनके पास कई resources होते हैं, so books about growing up and sex and periods and ये इन चीजों के बारे में. And the book was talking about sex for 8 to 12-year-olds. And she waited till I was 12 years old to give me the book. Book पढ़ लिया, मुझे biology समझ आई इसके बारे में, ये वो हुआ. पर फिर भी हमारे घर में इस चीज के बारे में हम बात नहीं करते थे बिल्कुल भी. और फिर फ्लैश फॉरवर्ड 10-11 years later when I actually had sex for the first time, मेरे मन में ये लगा था कि sex is a post marriage thing. वो मुझे सुनाई दिया था and लोगों ने मतलब घर पे we didn't talk about it and so it was implied कि शादी के बाद ही sex कर सकते हैं. But मेरे लिए when I went to college, सब लोग मेरे पास में, मेरे सब दोस्त सेक्स ही कर रहे थे. मेरे लिए it wasn't an attractive thing कि मुझे करना ही है. I just realized कि people have different opinions and approaches towards sex and it's something that it's important to be understood कि आपका क्या महसूस है. However you think of it, whether you think of it as something post marriage, whether you think of it as something that you want to do जब आप प्यार में हो, that was my feeling, whether it's something that you want to do casually, there's nothing wrong with any of these situations. लेकिन important चीज क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो और आपका क्या मन का स्टेट है toward it. Because sex is not just physical, it's emotional, it's mental, it's physiological. और उसके जो surrounding चीजें हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते घर पे, consent, safety, consequences, उसके बारे में जानकारी बहुत important. जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है. तो जब मैं गई थी और कॉलेज में मुझे प्यार हुआ और मेरा एक रिलेशनशिप हुआ and when I was absolutely sure कि मैं प्यार में हूँ, I felt कि I was ready. और मेरे पार्टनर के previous बहुत पार्टनर्स थे but उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं किया था. In fact, when I met him and we decided to start dating, मेरा पहला कंडीशन था कि no sex. मैं ये देखना चाहती थी कि वो उसी चीज के लिए मेरे साथ है या किसी और चीज के लिए मेरे साथ है. And जब मैंने पहली बार किया था, it was a very beautiful experience because it was with somebody I loved. और we were very safe क्योंकि जब आप US में कॉलेज में जाते हो, एक मॉड्यूल होता है जब आप शुरुआत करते हो कॉलेज में, जिनके बारे में वो थोड़ा सा सेक्स एड की जानकारी देते हैं. So you understand all the things related to not just sex but also harassment and abuse and अगर आप कोई मुसीबत में हो तो आप किनसे बात कर सकते हो, उनके पास हॉटलाइंस है, ये वो. It's changing a lot, but मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में भी आए because it's super important to have access to those resources ताकि आपके मन में भी शांति हो और आपके पास मतलब you have safety around you. So my first experience was beautiful. मतलब the actual first थोड़ा awkward था क्योंकि हमारे पास लूब नहीं था. And अगर आप जानते हो कि लूब क्या है, लूब is lubricant. It's something that you often use to help make the experience more pleasurable. जब मैंने पहली बार किया था, हम सेफ थे, बट मैं जानती थी कि मुझे और भी सेफ्टी लाना था. So I started talking to doctors कि मेरे बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस हैं and I started considering different birth control. पर मैंने फिर भी अपने माँ बाप को ने बताया था कि
मैंने सेक्स किया था। एंड वन डे वो यूएस विजिट कर रहे थे एंड आई वेंट टू मीट देम एंड माय मॉम पुल्स मी असाइड और वो साइड पर लाकर मुझे कहती है, अवंती मुझे कल रात बुरा सपना हुआ। And I was like, okay, क्या सपना हुआ? मुझे सपना हुआ कि आपने सेक्स किया है। I was like, okay, आप मतलब वैसे आप कुछ भी बोल रहे हो? And she's like, नहीं मुझे वो सपना आया इसलिए मैंने इस बैग में कॉन्डम डाला है, ये डाला है, ले लो। मैं जानती हूँ कि हमने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है, बट अगर आप कभी करते हो तो आप सेफली करो। तो मैं शर्मा गई क्योंकि मैंने कहा ये माँ बाप के साथ कैसे बात कर सकती हूँ, बट मुझे यकीन हुआ कि वो ही मेरा अपॉर्चुनिटी था उनके साथ बात करने के लिए। So I sat her down and I said to her, listen, मैं ऐसे नहीं बताना चाहती थी, but I want you to know that I have had sex and it was a beautiful experience। and वो जानती थी कि मैं relationship में थी। At that point it had been 7-8 months and I told her कि हम safe हैं, in fact I'm considering other birth control options as well। तो सब उसके बारे में बात हुई। She was थोड़ा सा upset but she respected कि मैंने बताया कि मुझे मालूम है कि आपके लिए शादी के बाद थोड़ा important था, but मेरे लिए प्यार important था and that was my reasoning and I was very clear of that कि मैं casually नहीं करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए important है and she respected the fact that I knew what I wanted। but मैंने कहा रुको, ये मेरा और भी opportunity है इसके बारे में बात करने के लिए। So I sat her down and I said, देखो आपने मेरे साथ सेक्स के बारे में बात नहीं किया, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन हुआ मुझे छोटे छोटे पीसेस से, इंटरनेट से, कॉलेज से, यहाँ से वहाँ से, किताबों से मुझे लेना पड़ा। I wish कि आपने बात की थी। And she said, I'm sorry कि बात नहीं की है, but you know I'm glad कि you know। And I was like, no, it's really important कि हम इसके बारे में बात करें, because if we don't talk about sex, as a result, we don't talk about consent, good touch, bad touch, consequences and everything that comes with it। और फिर मैंने उनको बताया कि जब मैं करीब 12 साल की थी, मेरा एक ट्यूशन टीचर था जिन्होंने मुझे बुरी तरह से छुआ था। एंड मैं जानती हूँ अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, आई एम सो सॉरी इफ यू ऑल्सो डेल्ट विद दिस, पर मैं जानती हूँ कई लोग देखेंगे और उन्होंने कहा ये मेरे साथ भी हुआ है या मेरे साथ और भी हुआ है। आई एम सो सॉरी इफ यू हैड टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट, बिकॉज इट इज नॉट ओके फॉर एनीबॉडी टू टच यू विदाउट कंसेंट। उन्होंने कहा था आपने मुझे क्यों नहीं बताया था, अगर आपने मुझे उस समय बताया था तो मैं बहुत गुस्सा होती, ये वो। इनफैक्ट मैंने उनको बताया कि वो टीचर अच्छा नहीं है इसलिए वो निकल गए हमारे घर से, पर मैंने रीजन नहीं बताया था। वो बहुत अपसेट हुई, वो रोने लगी और मैंने बोला था कि I did not tell you because I thought that I was doing something wrong. I could sense कि this is not okay, but मुझे लगा मैं कुछ कर रही हूँ और अगर मैं आपको या पापा को बताऊं तो आप मुझ पर चिल्लाओगे और मुझे बताओगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हम इतना इंटरनलाइज करते हैं ये शेम इसके बारे में क्योंकि हम इस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो प्राइवेट जगह है उसको छुओ मत या किसी और को छूने ना दो। बट क्यों? अगर हम इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हमारे बहुत स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। बहुत लोगों का सेक्स एजुकेशन कहाँ से होता है? पॉर्न से होता है, और पॉर्न में वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक तरीके से दिखाते हैं। तो मैंने ये सब बातचीत की मेरी माँ से एंड शी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस। तो मैंने कहा देखो मेरे साथ ये बातचीत नहीं हुई घर पे, इट्स ओके, आई एम ओके, पर मेरा एक छोटा भाई है और मैं ये नहीं चाहती कि उसको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो मेरा भाई तभी यूएस में हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो मेरी माँ ने कहा उसका स्कूल उसके बारे में बताएगा। आई एम लाइक दैट डज नॉट अब्सॉल्व यू ऑफ योर ड्यूटी एज अ पेरेंट टू स्टिल क्रिएट दैट माहौल एट होम दैट इट्स सेफ टू टॉक अबाउट इट, इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। स्कूल में एक चीज है, बट अगर हमारे घर में हम ओपनली बात नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ बोलो ए मैंने आज सेक्स किया, बट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कॉन्डम बैड वर्ड नहीं है, कॉन्डम कॉन्डम है और उसके साथ सेफ्टी आती है। और अगर आप कंसेंट के बारे में नहीं बात करते हो तो कोई भी जेंडर के इंसान को वो जानकारी नहीं होगी कि इट्स इम्पोर्टेंट टू आस्क फॉर कंसेंट इन एवरीथिंग इन लाइफ, बट पर्टिकुलरली इन एन इंटरेक्शन लाइक दिस। तो ये सब बातचीत हुई एंड शी अंडरस्टूड। फ्लैश फॉरवर्ड टू 2020 जब पैंडेमिक शुरू हुआ, मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया ऑनलाइन हार्वर्ड से क्योंकि हमें वापस आना पड़ा पैंडेमिक की वजह से, और तभी मैंने यूट्यूब चालू किया। और यूट्यूब पे मैं म्यूजिक ऑफ कोर्स मेरा मेन है, बट मैंने तभी एजुकेशन के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया था। और क्योंकि हम सब घर पे थे, मैंने देखा कि एजुकेशन सिर्फ मैथ के बारे में नहीं है, एजुकेशन का मतलब है लाइफ स्किल्स। और जिन चीजों के बारे में हम बात नहीं करते, हमें स्कूल में जानकारी नहीं मिलती, उनको और किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करना शुरू किया। और मेरा उसमें बैकग्राउंड भी है क्योंकि मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी और ग्लोबल हेल्थ भी पढ़ी। और एक दिन मेरी आजी
मेरी दादी, वो हमारे घर के पास बहुत बहुत पास में रहती है, तो वो हर हफ्ते आती थी और हम एक फिल्म देखते थे साथ में, एंड वो मराठी पिक्चर लगाती थी. बट द मराठी फिल्म्स दैट शी वाज चूजिंग वर अमेजिंग. दे वर अबाउट सच इनक्रेडिबल टॉपिक्स. तो मैंने सोचा कि अरे वाह, मेरी दादी बहुत कूल है. तो मैंने कहा एक दिन आजी सुनो, मैं आपको एक अलग सा वीडियो दिखाऊंगी आज, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं साइड में फोन भी डालूंगी रिकॉर्डिंग करने के लिए. शी सेड हाँ चलेगा. तो मैंने उनको वॉक और एनाकोंडा के म्यूजिक वीडियोस दिखाए, और मुझे लगा कि वो कुछ हैरान सी होंगी, बट शी वाज सो नॉर्मल अबाउट इट. क्यों? बिकॉज शी वाज अ डॉक्टर एंड ऑल माय ग्रैंडपेरेंट्स आर डॉक्टर्स. तो उनके लिए ये सेक्स नहीं है, वो सेक्स है, वो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है. और उनके प्रैक्टिस में बहुत लोग उन चीजों के बारे में पूछते थे. सो आई शोड इट टू हर एंड it ended up becoming a conversation about objectification, women empowerment, and it was really really powerful. और जब मैंने इंटरनेट पर डाला, बहुत लोगों ने उसको देखा, and so many people reached out saying the fact that you can talk about this with your dadi is a huge blessing, and I agreed. तो मैंने फिर उनके साथ पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करना शुरू किया. बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूं, शायद जो आप देख रहे हैं, आप शायद कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, स्कूल में हो, जो भी है, बट अगर मैं अपनी दादी के साथ भी बात कर सकती हूँ इन चीज के बारे में, देन यू क्रॉस जनरेशंस. और फिर अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो ये वो. और वही आजी के साथ जब हम बात करते हैं, मैंने उनको एक उनका स्टेटमेंट है जो वायरल हुआ. मैंने उनको पूछा कि कई लोग सेक्स करते हैं बेबीज के लिए, बट बहुत लोग सेक्स करते हैं प्लेजर के लिए. उन्होंने कहा नहीं, most people have sex for pleasure. The outcome is a baby. Yes. Mostly it is for pleasure. Outcome is baby. She was one of the people, she and my grandpa, वो Family Planning Commission Association of India पे के बोर्ड पे थे, and they would go into rural areas और contraception के बारे में बात करते थे, इन चीज़ों के बारे में बात करते थे. Because again, no matter what it is in life, हमें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमें इंफॉर्मेशन हो, हम सेफ रह सकते हैं. और दिस इज जस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ. और इसके बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए. इफ वी डोंट टॉक अबाउट इट एट होम, देन वेयर कैन वी टॉक अबाउट इट? मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी शुड हैव, इन एडिशन टू जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, वी शुड हैव सेक्स एजुकेशन. ऐसे नहीं कि एक दिन पर उसके बारे में कोई डॉक्टर को बुला दो और खत्म हो गया. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट्स टॉक्ड अबाउट, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एनाटॉमी, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज के बारे में. हम कभी बात करते हैं इस चीज के बारे में सुहाग रात के पहले. क्यों? उसके पहले क्यों बात करते हैं? मैं समझ सकती हूँ अगर कई लोगों के लिए शादी is important, but it's not that even that it's so scary for a lot of people, whereas it should be a pleasurable experience. It should be something that can be celebrated. And sexuality is also a spectrum. हमारे sex education में अगर उसके बारे में बात भी करते हैं, we still talk about penis and vagina. We need to talk about the varying forms of sexuality, the varying forms of sexual orientation. कई लोग asexual भी होते हैं, and it's a huge spectrum, and different people associate with different aspects of it. So it's just important to have a proper anatomy education about it, a proper emotional education about it, and a proper social education about it, ताकि हम बढ़ सकते हैं as a society. Because देखो, हमारे देश में 1.2 बिलियन लोग हैं. आप बता रहे हो कि लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं, लोग हमेशा सेक्स कर रहे हैं, बट ठीक जानकारी के साथ नहीं कर रहे हैं. एंड इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ के बारे में एजुकेटेड हो, इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दादी के साथ, किसी भी इंसान के साथ, ताकि वी जस्ट नॉर्मलाइज इट. बिकॉज ऐसी महान बात नहीं है कि आपने सेक्स के बारे में बात किया है तो यू आर ब्रेव. नहीं, इट्स नॉर्मल. इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट फूड, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. सो आई एम ग्रेटफुल कि मेरा फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस वाज so beautiful, and उसकी वजह से I've always had a positive light toward it. But for so many people, their first sex experience is extremely negative because there's not enough understanding, and for a lot of people, their first sex experience is some form of assault. And I hope that by talking about it, we change that narrative and more people are safe and are able to experience something that's beautiful.